Hello friends, welcome to my YouTube channel, and we are discussing here the syllabus of mathematics for BSc and for higher mathematics. And today we discuss about the differential equations that is play a very important role in our and also the major part of the syllabus of higher mathematics. So let me understand what is differential equation. So today we discuss some basics of it, and after it we go for higher level. Okay, so let me start. Okay, now the basic definition of the differential equations that written on the board you can see easily. Differential equation क्या होती है, हम डेफिनेशन देखते हैं. A differential equation is an equation containing dependent variable, independent variable and derivative of independent variable with respect to derivative of dependent variable with respect to independent variable. So आइए मेरे साथ समझने की कोशिश करिए इसको. इसमें हम बेसिकली देखते हैं दो टर्म्स ऐसे हैं जो काफ़ी डिफरेंट हमको लग रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और ये डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट. इफ you can understand the dependent and independent variable, then the derivative will also understand it by you. So what the dependent variable? So let me take an example of a function in which we take x as independent variable and y as dependent variable. Okay, so let me take y equals to x square is a function. Okay, so here you can see. Okay, if we put any value of x, okay, अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए x की हमने 3 ले ली, तो y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है. द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. ओके, बट द वैल्यू ऑफ x इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर. ओके, सो if we take x equals to 3, then y equals to 9. y is depend on x. If we take x equals to 91, then y will be 91 का square. Okay, so that's are the dependent and independent variables. Okay, here x is the dependent variable and y is x is independent variable and y is dependent variable because y is depend on x. Okay, so you can easily understand that a differential equation is an equation which contains dependent variable, independent variable and derivative of dependent and independent variable. Okay, now let us take an example to understand it. So now we take an example. So we have an example. It means let an example dy over dx plus 3d square y over dx square, okay, equals to 3y. This is an example. So how is it the differential equation? ये differential equation कैसे है, इसको समझने का प्रयास करिए. ये definition क्या इसमें फॉलो हो रही है? So ये x जो हमने माना इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और ये y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, बट यू कैन सी we have here 3x. So you can see here x as independent variable. ये dependent variable है. So you can see x as independent variable and y as dependent variable. Okay, so you can see easily, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि x जो है वो किसी की वैल्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या होगी. अगर x की वैल्यू हम डिफरेंट देते चले जाएंगे तो y की भी वैल्यूज डिफरेंट ही आएंगी. सो और ये क्या है हमारे पास, ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो
here you can easily see we have in this equation dependent variable is x and sorry dependent variable is y, independent variable is x. Okay, dependent variable is y, independent is x, and the derivative of dependent variable with respect to independent variable is also present in this equation. So that's why this equation is also the example of a differential equation. So note down it. If we go for another topic, now we have a differential equation. With the help of it we have to know about some headings like what is the order of any differential equation. Okay, order, first thing we have to understand order, and after it we go for degree of differential equation. Okay, so for an order, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं ऑर्डर के की, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो होता है हाईएस्ट, जो डेरिवेटिव होता है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इक्वेशन में, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब मैं बात करूं डी क्यूब ओवर dx क्यूब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ऐसे में बात करूं डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो ये क्या है, मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इक्वेशन में, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो हियर वी हैव द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज here the order of the derivative is 1, and here is 0, and here is 2. So highest order derivative is what? So the order of the highest order derivative is known as the order of the whole differential equation. ठीक है, जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होता है वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। सो हियर द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? 2। ऑर्डर क्या है? 2। अब हम बात करते हैं डिग्री। डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? सो डिग्री इज नथिंग बट डिग्री इज डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो पावर होगी वो हमारा डिग्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो समझने का प्रयास कीजिए इसी एग्जांपल की हेल्प से। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है भाई? यही है। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, इसकी पावर कितनी है? 1 है भाई, 1। तो क्या हो गया, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 1। नाउ एक बात मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम तभी बता सकते हैं जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन की सभी जो है एक्सपोनेंट्स, सभी डेरिवेटिव्स की एक्सपोनेंट जो है आपके फ्रैक्शन पार्ट, और जो है फ्रैक्शन पार्ट से मीन्स उसमें फ्रैक्शन पार्ट ना आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मानो हमारे पास ये होता, हम मान लेते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और 3/2 ये होता। देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स की होल क्यूब इक्वल टू 3y। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि मैं डिग्री बताऊं। यहाँ ऑर्डर तो आप बता सकते हैं, ऑर्डर क्या है? 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर भी 2 है। पर लेकिन डिग्री की बात करेंगे तो पहले ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इनको हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे भाई? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को 3/2 रहने दें। अगर हम इससे उधर ले जाएं तो क्या करेंगे? 3y माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स की होल क्यूब
अब दोनों तरफ का हम अगर स्क्वायर करें, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा हमारे पास, स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, इधर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर तो फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, लेकिन इधर है तो ये पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, क्यूब रह जाएगा ओनली हमारे पास, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर क्यूब इक्वल्स टू, अब ये होल स्क्वायर रहेगा, इसको सॉल्व करने पर भी हमें फ्रैक्शनल पार्ट कहीं नहीं मिलेगा भाई, आप ना माने तो देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है वो हमारी डिग्री होती है, क्या 3, सो यही क्या है डिग्री ऑफ 1, ये हम 1 मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है 3, आप समझ गए होंगे कैसे। ओके, नाउ वी गो फॉर सम अदर टॉपिक्स। Now we have another topic that's name is linear differential equations. Okay, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ linear differential equations, ठीक है। क्या होंगी, देखिए if any equation is expressed in the form, आप लिखते चलिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं लिख रहा हूँ if any equation, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, या सो इफ एनी इक्वेशन can expressible as, okay, can expressible as okay, here P0, P1 and Pn and Q are either the constant or the function of x or the functions of x. so देखिए अगर कोई भी इक्वेशन अगर ऐसे एक्सप्रेस की जा सके तो क्या होगी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स लाइक x plus 3y equals to x square. Okay, here we have some example. So if we compare it with it, then here we have if we multiply it 1, then there is no effect on it. So जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर P0 कांस्टेंट हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, तो ये P0 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और ये dy ओवर dx यहाँ पर n क्या 1 है। ओके, तो ये सिमिलर है। और अगर हम ये बात करें, ये कैसे कि अगर ये लास्ट वाला टर्म है आपका pn कांस्टेंट हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ये y है। ओके, और ये क्या है, x क्या फंक्शन ऑफ x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, तो फंक्शन ऑफ x है, तो ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट मी टेक सम फ्यू एग्जांपल्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, लेट मी टेक another topic that name non-linear differential equation. Okay, what's name is non-linear differential equation is basically the equations in which the equations that follow any one rule from these rules, these 3 points. Okay, first point is what?
फर्स्ट पॉइंट इज दैट, जैसे कि हमने बताया कि लीनियर में एक्सप्रेस करने से हो जाता है। अब नन लीनियर की बात करें तो नन लीनियर में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। हियर वी टेक 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इट मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस like dy over dx, okay, or dny over dxn, okay, has exponent more than 1। अगर ऐसा आ जाए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट हो वो 2 हो सकती है, 3, 5, 4 कुछ भी हो सकती है। मींस जो एक्सपोनेंट होगी वो, जैसे मैं मान लेता हूँ p है, ओके, क्या है p, तो p क्या होनी चाहिए, मोर देन 1, ओके, p क्या है, ग्रेटर देन 1, ओके, ये क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल दैट वी डिस्कस आर द लाइक एज y। सो y की जो एक्सपोनेंट होगी वो मान लीजिए q होगी, तो q जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओके। इट मीन्स एक्सपोनेंट जो है, पावर है जो y की, इसमें जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो y की जो एक्सपोनेंट होगी वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव dy ओवर dx। अगर कोई ऐसा भी आता है, ऐसा कोई अगर एक्सप्रेशन आता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन भी नॉन लीनियर होगी, ओके। Now I think we take an example to understand it clearly. So we take a few example on it. Now we take an example here. You can see here the differential coefficient has exponent more than 1 in this term. Differential coefficient ये है, इसकी पावर जो है वो more than 1 है, ओके, 2 है, तो क्या है, नॉन लीनियर है। मैंने क्या बोला कि कोई भी इनमें से कोई भी पॉइंट, अगर ये कोई भी रूल, ये कोई इक्वेशन फॉलो करती है तो वो नॉन लीनियर होगी, ठीक है ना। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट फॉलो कर रही है, ये इक्वेशन कर रही है ये वाला, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1, ओके, सो नॉन लीनियर हो गई। नाउ वी गो फॉर अनदर टॉपिक। नाउ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बेसिकली इट इज़ अ रिलेशन फ्री फ्रॉम द डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होता है रिलेशन का, आई मीन टू से इट इज़ फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, ओके। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि जिसमें डेरिवेटिव नहीं आएगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा ना वो और उसका डेरिवेटिव जो होगा, अगर वो दोनों, पता है ना, जो ये हमारा सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का dy ओवर dx और इक्वल्स टू y का ये सॉल्यूशन है, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो, और ये जनरल सॉल्यूशन, सॉरी, इसका डेरिवेटिव और ये सॉल्यूशन क्या होंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। आया समझ में? समझ लेते हैं, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो हमारा हमने मान लिया y इक्वल्स टू e की पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, ओके, ये हमें दी गई है, गिवन, ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन निकला। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x। तो आप देख लीजिए ये दोनों चीज़ें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेटिस्फाई करती हैं किसको, इसको। देख लीजिए आप, dy ओवर dx की जगह पर मैं e की पावर x रख सकता हूँ, और y की जगह पर, सॉरी, y की जगह p की पावर x, तो ये सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन फ्री फ्रॉम द डेरिवेटिव बिटवीन द वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। आई मीन टू से ये रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। किस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि ये रिलेशन और इसका डेरिवेटिव हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे, आई मीन सेटिस्फाई करेंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के भी टाइप होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशंस।
But now we discuss only two types of solutions that we have: general solution and another is particular type of solution. So firstly, general solution. What is general solution? So general solutions are those solutions. जनरल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ डेफिनेशन, काफ़ी समय लगता है लिखने में, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ. जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन which contains as such I would say as many as the arbitrary constants. उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस जनरल सॉल्यूशन में होंगे जितना उस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. समझिए. लेट मी टेक एन एग्जांपल. लेट y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x ओके इज द solution of d square y over dx square plus y equals to 0. ओके. सो मैंने मान लिया है ये कि इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा. अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं बोल तो ये भी सकता हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई ये भी करता है y इक्वल्स टू a cos x. ओके. बट आप सोचिए कि ये इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक है. ओके. बट यहाँ पर ऑर्डर क्या है, दो है. तो क्या है कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें दो कांस्टेंट होने जरूरी हैं. तो इसीलिए ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं हुआ. इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो हैं और इसका ऑर्डर भी दो है. तो जनरल सॉल्यूशंस मैं बता चुका हूँ कि जनरल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस which contains as many arbitrary constants that the order of the differential equation. जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे. आइए अब हम चलते हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की ओर. किसकी ओर? अब चलते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की ओर. लेट मी डिस्कस पर्टिकुलर टाइप ऑफ solution. नाउ अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. मान लीजिए मैं पिछला एग्जांपल ही लेता हूं. y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज द जनरल सॉल्यूशन of d square y over dx square plus y equals to 0. ओके. तो आप यहाँ आसानी समझ सकते हैं कि ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. बट अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर द दो सॉल्यूशंस which can obtained by putting the values of arbitrary constants in general solution. ओके. तो अब हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन है. इसमें अगर मैं a और b की जगह पर कोई इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज डाल दूं, ओके, कोई भी वैल्यूज इनकी डाल दूं तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. लेट a इक्वल्स टू मैं 2 रख दूं, b इक्वल्स टू 3 रख दूं. तो इसमें रखने पर क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस में 3 sin x. ये क्या है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस how to find the differential equations from its general solution. ओके. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी दी गई जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. उसके भी कई सारे टाइप्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. आई थिंक it's okay for now, and this is the basic for differential equation that we discuss. In briefly, I wanted to share with you what we recall. I think what we read in today's lecture,
we read what is the differential equation, the definition of it, and after it we go for order of a differential equation, degree of a differential equation, and linear and non-linear types of differential equation, and after it we go for solution of a differential equation, a general solution of a differential equation, and now we finish it on particular solution of a differential equation. Okay, so that's okay for today, and after it we go for so many lectures, and in upcoming lectures we have a lot of stuffs to read. Okay, stuffs to learn. So please stay on our YouTube channel and spread it for all the students who wanted to get a better education. Okay, so thank you.